food production control. Okay, which means we have to apply those, and we are going to establish these some sort of procedures and standard to control the production of the food and maximizing the profit for the organization. This is the basic motive for this chapter. Okay, in this we have discussed the concept of the production. Then we have discussed the some control procedures for production. Okay, जिसमें हमने क्या पढ़े थे? We have discussed the three main division which is called as the standard. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? स्टैंडर्ड. इसमें था एक हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट. इसमें था हमारा दूसरा स्टैंडर्ड. Then we have the standard recipe. Okay, then we have the standard portion. Okay, so these are the three things which we have discussed in these control procedures for the production. Okay, in this we have discussed the standard cost concept, standard recipe and standard portion. अब हमने स्टैंडर्ड पोर्शन में भी पढ़ा था स्टैंडर्ड पोर्शन कॉस्ट. How do we calculate? And we have discussed the three methods. First is formula method. How do we calculate the standard production cost? Second is cost sheet, and third is butcher method. Okay, and fourth method is cooking, which we are going to discuss today. Cooking loss method या cooking loss test. Okay, इसको हम butcher test भी कहेंगे, कह सकते हैं. Okay, so we have understand or we have done these things in this chapter. Okay, so first here when we are discussing the portion cost, okay, or portion thing, so we have already discussed the concept of the portion. तो पोर्शन का यहाँ पर सीधे मतलब है एनी क्वांटिटी any fixed quantity, not quantity, any fixed quantity which we are going to serve to the guest or utilize to prepare final product. Okay, so here the portion is यहाँ पर portion के दो मीन है. First, the fixed quantity which we are going to serve to the customer, and second is the fixed quantity which we are going to use in our production part. Okay, so portion and quantity, these are not a different thing. दोनों ही एक चीज है. अभी हमने देखा कि यहाँ पर इस चैप्टर का नाम अलग अलग है, लेकिन ठीक है, एक को पोर्शन नाम दिया गया है और एक को क्वांटिटी.
ओके, इसको एक को पोर्शन नाम दिया गया, एक को क्वांटिटी। तो इसमें ऐसा नहीं समझना है कि दोनों चीज अलग हैं, ये दोनों ही चीज एक ही हैं, लेकिन पोर्शन में एक फर्क क्या आता है, दिस इज द फिक्स क्वांटिटी। ओके, चाहे फिर वो हमारे मेन्यू में हो, चाहे हम फिर प्रोडक्शन में अपना कोई फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। So these things we have already understood from this chapter. In our formula method to calculate the standard cost, okay, standard हमने इसको काय के लिए यूज किया था, स्टैंडर्ड पोर्शन कॉस्ट के लिए, टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोर्शन कॉस्ट। ओके, जिसमें हमने क्या किया था, टोटल को डिवाइड किया था नंबर ऑफ पोर्शन से। ओके, और इन कॉस्ट शीट मेथड वी हैव डिस्कस दी कॉस्ट शीट मेथड फॉर कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड पोर्शन कॉस्ट। इसमें हमने क्या किया था, हमको सारे ही इंग्रेडिएंट की कॉस्ट दी हुई थी, और हमने सिर्फ टोटल करके उसका जो कॉस्ट था वो हमें बताया था। ओके, एंड इन बुचर टेस्ट, हमने यहाँ पर बुचर टेस्ट में भी सेम ही किया था, हमें भी वहाँ पर शीट दी हुई थी, हमने वहाँ पर सिर्फ टोटल किया था, और ये से नॉन वेज की हमने जो शीट देखी थी, ठीक है, और हमने फिर वहाँ पर कॉस्ट निकाली थी, वो है किसकी कॉस्ट निकाली थी, ये स्टैंडर्ड पोर्शन कॉस्ट। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस टुडे दी कुकिंग लॉस टेस्ट। ओके, इसमें क्या होता है वो हम देखेंगे। सो दिस इज द क्विक रिवीजन फॉर ऑल दी concept which we have discussed in previous classes in this chapter. So today we will discuss the cooking loss test. Okay, तीन मेथड हमने और भी ऑलरेडी देख चुके हैं। दिस इज द लास्ट मेथड which we used for calculating the standard portion cost. So the primary motive is the primary motive of the standard the cooking loss test. Here we know that whenever we are going to cook any specific product or any specific thing, so there will be a some kind of loss. अब वो किस तरह का लॉस होता है, ठीक है, अब हर एक जब रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं तो सब में क्या होता है, सारी चीज यूज करने लायक नहीं होती, या फिर हम उसको फाइनल प्रोडक्ट में नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे कि हम अगर 2 किलो आलू लेके आए हैं, 2 kg पोटैटो हमारे पास है, ठीक है, तो हम उसको, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सारे को यूज कर पाएंगे। ठीक है, उसको छीलने के बाद हो सकता है वो 2 का कितना हो जाए, 1.5 किलो, और हो सकता है 1 किलो ही हो जाए। ओके, तो इसको हम, जो हमारा लॉस होता है ना, इसको ही हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारा कुकिंग का लॉस कितना हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ इन्होंने दिया हुआ है, वो हम देखते हैं क्या बताया इन्होंने। ओके, द प्राइमरी पर्पज for cooking loss test is the same. The primary purpose for cooking loss test is the same as that we have butcher test, determining the standard portion cost, जहाँ जो हमने वहाँ पर portion cost निकाली थी, यहाँ पर हमने फैट देखा था और स्टैंडर्ड पोर्शन देखा था। इन सिमिलर वे द कुकिंग लॉस टेस्ट भी वैसा ही है जैसे बुचर टेस्ट हमने किया था। द कुकिंग लॉस टेस्ट इज यूज्ड फॉर दोज आइटम्स दैट कैन नॉट बी पोर्शनाइज्ड और दैट कैन नॉट बी पोर्शनड अंटिल आफ्टर इज कंप्लीट। ओके, जैसे हमने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया पोटैटो का। ठीक है, ये मेथड सीधे सीधे उसको रेफर करता है कि जो भी हमारा कुकिंग के टाइम पे हम ओरिजिनल लेके आते हैं और हमारा जो लॉस होता है,
these things will comes under this section, okay, which is called as the cooking loss test. With these items, one must take into account the weight loss, okay, weight loss that occur during the cooking. Therefore, one cannot determine the quantity remaining the portion until is completed or portion able to weight can be determined. Cooking loss varies to cooking time, temperature. ये सारी इन्होंने चीजें दी हैं। मतलब अगर हम पंपकिन की बात करते हैं, पंपकिन इज अ वेजिटेबल, ठीक है, अगर हम उसको 2 किलो लेके आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पूरा जो हम जिस कंटेनर में उसको बना रहे हैं कि वो क्वांटिटी काफी होगी उस हमारे 10 कस्टमर के लिए, लेकिन वो जब फाइनल कुकिंग होती है उसकी, तो उसमें उतना क्वांटिटी नहीं रहती जितना बनाने से पहले रहती है, अगर आपने ध्यान दिया हो पंपकिन का। ठीक है, तो वैसा होता है उसमें। तो इसी तरह से ये जो हम देख रहे हैं कुकिंग लॉस टेस्ट, वो वैसा ही है। जैसे मैं आपको पंपकिन का एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब हम पंपकिन लेके आते हैं वो हमारा जो कंटेनर है फुल हो जाता है, लेकिन जब वो फाइनल जब तक बनता है वो बहुत कम रहता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम उसको डिटरमाइन नहीं कर पाते कि कितने लोगों के लिए हो पाएगा ये। शुरुआत में तो हम कहते हैं काफी लोगों के लिए, लेकिन बाद में उसका जो टोटल पोर्शन है वो बहुत कम हो जाता है, ओके, या क्वांटिटी है वो बहुत कम हो जाती है। सो दीज टाइप थिंग्स वी कैन इंक्लूड इन दी कुकिंग लॉस टेस्ट। ठीक है, जो उसका वेट होता है ना, वो वेट वो लॉस उसका लॉस हो जाता है और फाइनल प्रोडक्ट हमारा उतना नहीं हो पाता जितना हमने यूज किया होता है सारा। ओके, इसके लिए इन्होंने एक शीट दी है इसको समझने के लिए। शीट नहीं है, इन्होंने कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं टू हाउ हाउ टू कैलकुलेट दी number of portion size, okay, so they have given one formula। इसको ही इन्होंने कई बार मॉडिफाइड किया है। द इनका एक फॉर्मूला है कि ओके, जैसे इन्होंने मेंशन किया है yield factor। yield factor is defined as the percentage whole percent unit meat, poultry, fish that available for portioning after any required in-house processing has completed। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने ये यील्ड फैक्टर जो आपको दिख रहा है ना, ये यील्ड फैक्टर इन्होंने वही फैक्टर बताया है जो हम ये इन्होंने ये नॉनवेज के टर्म से बताया है, जो हमने पहले पढ़ा है कुकिंग लॉस के टर्म में। ठीक है, तो इन्होंने इसका एक फॉर्मूला दिया है, इसको हमें देखते हैं कैसे इन्होंने दिया है। ये क्वांटिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोर्शन इनटू द पोर्शन साइज which is divided by yield percentage। okay, yield percentage, so we can modify this formula, so whenever we require the calculate the yield percentage, तो yield percentage को निकालने के लिए हमने बताया था आपको कैसे रिवर्स करते हैं फॉर्मूलाज को। अगर ये yield percentage यहाँ आ जाएगा, क्वांटिटी यहाँ आ जाएगी, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला yield percentage का। yield percentage इज इक्वल टू, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, और एक क्वांटिटी आ जाएगी इधर। ठीक है, इस तरह से हम yield percentage कैलकुलेट कर लेंगे अगर हमें ये चीजें ये वैल्यूज दी होंगी, नंबर ऑफ पोर्शन साइज और क्वांटिटी। अगर इनमें से हमें एक कोई भी दो चीज या तीन चीज कोई तीन चीज दी होंगी, तो उससे हम ये तीसरी चीज चौथी चीज निकाल सकते हैं। अब अगर हम नंबर ऑफ पोर्शन निकालना चाहें, तो नंबर ऑफ पोर्शन के लिए क्या होगा फॉर्मूला, इसको निकालना चाहें तो हम फिर से इसको रिवर्स करेंगे, इसका फॉर्मूले को। ये हो जाएगा नंबर ऑफ, नहीं इसको आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको ऐसे करते हैं कि yield परसेंटेज। ठीक है, अब yield परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, क्वांटिटी को, ये यहाँ आ जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। अब क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा क्वांटिटी। ठीक है,
और अब ये इसका मल्टीप्लिकेशन में है। अब हम इसका पोर्शन साइज क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इसके, तो डिवाइडेड बाय पोर्शन साइज। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी का या नंबर ऑफ पोर्शन का, नंबर ऑफ पोर्शन। नाउ हाउ डू वी, if we are going to calculate the portion size, so what is the formula? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिमिलर वे में, ठीक है। सिर्फ फर्क क्या आएगा यहाँ पर रहेगा, तो ये इतना ही, जो पोर्शन साइज है ये यहाँ आ जाएगा और नंबर ऑफ पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ पोर्शन यहाँ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला फॉर दी नंबर टू कैलकुलेट दी नंबर ऑफ, टू कैलकुलेट दी पोर्शन साइज। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले बनाए हैं, 3 फॉर्मूले।